हेलो गाइस, कैसे हो आप? लेट अस स्टार्ट विद आवर numerical portion for the chapter human eye. So today we are going to start with the numerical of prism. So yesterday also we have done some numericals for the prism chapter. So in prism we have done angle of prism, angle of deviation, minimum angle of deviation, angle of incidence, angle of refraction, and we have also done the discussion of factors on which your angle of deviation of the prism depends upon. तो हमने अगर आपको ध्यान हो, so there we have done the factors on which the deviation depends. Number 1 on angle of prism, number 2 refractive index, number 3 angle of refraction. Okay, so let us start with the numerical portion. Question number 1 is, a thin prism of 6 degree angle gives a deviation of 3 degree. So what is the refractive index of the material of the prism? तो क्या बोल रहा है? The question is that a thin prism of 6 degree angle. So you are given a prism and the angle of prism is 6 degree, and also the deviation angle is given 3 degree. It means in a prism the angle of prism is 6 degree and the angle of deviation given is 3 degree. We have to find the refractive index of the material of the prism. It means we have to find mu, refractive index हमें निकालना है. So let us proceed. How to proceed? Before going this, I'm just trying to you people remind you about the formulas. So refraction through prism. It means whenever we are talking about refraction through prism, it means a light ray strikes on one side of the, or can say one face of the prism, and it will refract when it is going from ray to denser medium, and then also it again refracts when it is going from denser to ray medium. It means there are two refractions that will take place whenever a light ray strike on the one face of the prism, and after suffering two refractions on different interface. One is air glass, for example air glass and glass air. So after suffering refraction through these two interfaces, the light ray will emerge out from the prism. So taking consideration of the refraction through prism, the formula number 1 is angle of prism will be equal to angle of deviation plus angle of incidence plus angle of incidence. So if you remember the diagram, angle of prism will be this, and finally we remember this, delta is equal to I1 plus I2 minus A. So this is the formula to be used whenever you are finding the numericals for refraction through the prism. Means whenever in the numerical problem you will be given some refraction through the prism, so in that refraction through the prism you can solve out the parameters by using these formula, which I'm going to write here. So A is equal to delta plus I1 plus I2. Delta will be equal to I1 plus I2 minus A. Number 2, R1 plus R2 is equal to A. Number 3, so we have done a condition when angle of deviation will be minimum angle of deviation. So when delta is equal to delta M, then I1 is equal to I2. Then I1 is equal to I2 and
and R1 is equal to R2. Number 4, mu is equal to sine I upon sine R. So from this formula we know that A is equal to del is del m, and del m I1 is equal to I2, it means I plus I. So 2I is equal to how much? 2I A is equal to del m plus I by 2. A, sorry, so del m plus I just a minute. So when del is del m, so I1 is equal to I2, it is I, let us suppose I. So डेल्टा यहाँ पर क्या है, डेल्टा इस फॉर्मूले में यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पर लिखेंगे क्या बनेगा, डेल एम विल बी इक्वल टू I प्लस I माइनस ए, डेल एम प्लस ए इज इक्वल टू 2I, इट मीन्स I इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई 2. तो आप ये चीज़ यहाँ यूज कर सकते हो. और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है. सो 2R इज इक्वल टू ए एंड R विल बी इक्वल टू ए बाई 2. तो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल एम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाय साइन ए बाई 2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. लास्ट इन डिफरेंशिएशन विल बी इट इज मीन डेविएशन. So delta will be equal to mu minus 1 into A. तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो कि this formula is used for finding the mean deviation when angle of prism is less than 10 degree. So when angle of prism is less than 10 degree, then we will use this formula mean deviation, that is delta is equal to mu minus 1 into A. So where mu is effective index, delta is mean deviation, and A should be less than 10 degree if you want to find the mean deviation by using this formula. So this is that A should be less than 10 degree. ठीक है. तो इन फॉर्मूलों को यूज करके हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे. इससे पहले भी हमने न्यूमेरिकल किए थे. तो पहले क्वेश्चन में जो गिवन क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि एक थिन प्रिज्म है जिसके अंदर एंगल ऑफ प्रिज्म इज 6 डिग्री एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज 3 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड द डिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म. तो हमें क्या निकालना है, प्रिज्म के मटेरियल का डिफेक्टिव इंडेक्स निकालना है. सो हाउ विल फाइंड आउट. गिवन क्या है, गिवन क्या है, एंगल ए कितना है 6 डिग्री और डेल्टा डेविएशन 3 डिग्री. ठीक है. निकालना क्या है, म्यू निकालना है, म्यू. ठीक है. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो लिखते हैं फॉर्मूला यूज used. So
डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो डेल्टा इज 3 डिग्री। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू जो है वो 10 डिग्री से कम दी गई हो। तो अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म किसी भी प्रिज्म वाले न्यूमेरिकल में एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 10 डिग्री से कम दिया हुआ है, तब आप डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला। डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 3 डिग्री। सॉरी, डेल्टा कितना है? सॉरी, 3 डिग्री एंड इज 6 डिग्री। ठीक है, तो 3/6 म्यू माइनस 1, सो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 एंड म्यू इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1। म्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच? 3/2। कितना आ गया? 3/2 आ गया। सो म्यू इज 3/2। तो हमें गिवन दे दिया गया है एंगल ऑफ प्रिज्म 6 डिग्री, दिस इज लेस देन 10 डिग्री एंड डेल्टा इज गिवन यू 3 डिग्री। सो यू हैव टू फाइंड म्यू। इट मीन्स whenever you have to find the angle of deviation or refractive index, whenever you will be given angle of prism is less than 10 degree, you always use this formula. Delta is equal to mu minus 1 into a, and delta is given as 3 degree and a is given 6 degree and mu minus 1. So mu minus 1 is equal to 1/2 and mu is equal to 3/2. So the refractive index of the material of the prism will be how much? 3/2. How much? 3/2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म ऑफ एंगल π/3 इज π/6। क्या बोल रहा है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द प्रिज्म जिसका एंगल क्या है? π/3 है और उसका एंगल डेविएशन क्या है? π/6 है। It means minimum angle of deviation is given π/6 and angle of prism is given π/3. For a given prism of angle π/3, the minimum angle of deviation will be π/6. Calculate the velocity in the material of prism if the velocity of light in vacuum is 3 multiplied by 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, let us start. Given, तो क्या दिया है हमें? क्या दिया था? एक प्रिज्म दे दिया गया है, उसका प्रिज्म एंगल दिया है, एंगल प्रिज्म दिया है, और क्या दिया है? और क्या दे दिया? एंगल ऑफ डेविएशन। और कौन सा है वो? मिनिमम एंगल डेविएशन दिया। तो मींस क्या क्या दे दिया? एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया ए कितना है? हाउ मच? π/3। ठीक है, तो वैसे कितना हो गया? 60 डिग्री। डेल्टा डेल एम मीन्स π/6, it means 30 डिग्री, it means 30 डिग्री। तो A आपको दे दिया 60 डिग्री और डेल एम कितना दे दिया? 30 डिग्री। ठीक, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द प्रिज्म, और C मुझे पता है कितना है? 3 × 8 10⁸ मीटर पर सेकेंड। C पता है, V पता है, A दे रखा है, डेल एम पता है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा? क्योंकि मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए मुझे फॉर्मूला पता है। जब आपको डेल एम दिया हुआ, क्या फॉर्मूला है मेरा? म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन A बाई 2। उसके लिए मुझे A की रिक्वायरमेंट है, A मेरे पास है, डेल एम की रिक्वायरमेंट है, डेल एम मेरे पास है। सो इन दिस वे विल फाइंड द सॉल्यूशन। लेट अस ट्राई। और देखिए, अब क्योंकि अब देखिए, इससे पहले चेक कीजिए कि मुझे V निकालना है। तो V दे रखा है, C दे रखा है, तो मुझे पता है कि फॉर्मूला यूज ये हो सकता है म्यू इज इक्वल टू C बाय
v हो सकता है, ठीक है। तो जब मुझे म्यू पता होगा तभी मैं v निकाल पाऊंगा, c तो मुझे पता है। इट मींस पहले मुझे क्या निकालना है, पहले मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालना है। सो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल m बाई 2 डिवाइड बाय साइन a बाई म्यू मुझे निकालना है। a is 60 plus 30 90 90 by 2 is sin 45 degree. a is 60, so it is how much, sin 30, how much, sin 30. So mu is equal to sin 45 is 1 by root 2 and it is 1 by 2. So mu क्या आ गया, mu is under root 2, it means mu will be equal to how much, 1.4142. इसका मतलब म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू की वैल्यू मेरी आ गई 1.414, ठीक है। तो ए क्या था, 60 डिग्री था, डेल एम कितना था, 30 डिग्री था। तो साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई 2, ए है 60 प्लस 30 90 बटे 2 45 हो गया। ए 60 बाई 2 इज 30 डिग्री, साइन 45 1 बाई रूट 2 और 30 1 बाई 2 ऊपर चला गया, क्या बच गया रूट 2, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, म्यू इज इक्वल सी बाई वी। तो वी निकालना है, वी इज इक्वल टू सी बाई वी। तो सी इज 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 एंड इट इज हाउ मच, अंडर रूट 2 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या आएगा, तो 3 बाई रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 10 की पावर 8। तो ये क्या बन गया, 3 इंटू रूट 2 बाई 2, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल 1.4, ठीक है। तो 3 इंटू 1.4 कितना बन गया, 14 42 कितना आ गया, 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और मेरे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी थी, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पर 8। तो आप देख सकते हो यहाँ वैक्यूम में है, मीन्स रेयर मीडियम है, यहाँ क्या है, मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो जब भी हम रेयर से डेंस मीडियम में जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी स्पीड हमेशा डिक्रीज होती है। तो देख लो यहाँ 3 है, यहाँ 2.1, ठीक। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग फ्रॉम, और व्हेनेवर द लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर डेंसर मीडियम, देन द स्पीड ऑफ द लाइट विल डिक्रीज। इफ द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन द स्पीड ऑफ लाइट विल बी इंक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, इक्विलैटरल प्रिज्म है। इन एन इक्विलैटरल प्रिज्म द एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 60 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज 1.5 सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड द लेटर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। मे भी मुझे लग रहा है कि शायद ये रिपीट ना हो रहा हो, आई एम नॉट श्योर, ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्या है, एक रे ऑफ लाइट है जो कि इक्विलैटरल प्रिज्म के अंदर से गुजर रही है। और जब भी हम इक्विलैटरल प्रिज्म की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था द एंगल ऑफ प्रिज्म इन एन इक्विलैटरल प्रिज्म इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट मीन्स ए क्या है, यहाँ पर 60 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस की, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल है। इट मीन्स आई विल बी इक्वल टू ई एंड लेटर मीन्स बाद वाला, इट मीन्स इमरजेंस एंगल इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, क्या निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो लिखते हैं।
हमें क्या दिया था, इक्विलैटरल प्रिज्म मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। इक्विलैटरल प्रिज्म मीनिंग है कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड म्यू इज इक्वल टू 1.5। एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड म्यू विल बी इक्वल टू 1.5 एंड क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड क्या दिया है, एंगल ऑफ इमर्जेंस विल बी इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। इट मीन्स 3/4 ऑफ 60। इट मीन्स हाउ मच, 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि आई भी 45 हुआ और ई भी 40। आई और ई का मतलब क्या हुआ कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 45। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। हमें निकालना है डेल्टा में निकालना। ठीक, तो सॉल्यूशन पे मूव करते हैं, डेल्टा निकाल लें। ठीक है, तो अब देखिए डेल्टा निकालना है, ए मेरे पास है, I1 मेरे पास है, I2 मेरे पास है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट के हिसाब से क्या गिवन है, ये कुछ पता होने के बाद आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि अब मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जिससे कि मैं इजीली इस क्वेश्चन को निकाल पाऊं। तो मेरे पास ए है, I1 I2 है, डेल्टा है, तो क्या लगेगा, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। डेल्टा निकालना है, I1 कितना है, I1 इज 45, I2 कितना है 35 एंड A इज 60 डिग्री, सो इट विल बी हाउ मच 30 डिग्री। तो डेल्टा क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो angle of deviation for the angle of prism is 60 degree, effective index of prism is 1.5 and if angle of incidence will be equal to angle of emergence will be equal to 3/4 of angle of prism, then the angle of deviation will be equal to 30 degree। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार इसको। Let us move on to next question। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.51 is placed in water of refractive index 1.32. If the angle of prism is 60 degree, calculate the angle of minimum deviation in water। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डेल एम निकालना है। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास एक प्रिज्म दे दिया है, प्रिज्म इज गिवन टू अस, एक प्रिज्म में दे दिया गया है, उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.52 और वो प्रिज्म पानी के अंदर रखा जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.32। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। तो गिवन क्या है, प्रिज्म का मीन्स ए म्यू जी, ए म्यू जी, इट मीन्स म्यू जी बाय म्यू ए कितना दे रखा है 1.5, ये हमें गिवन है। फिर दे रखा है ए म्यू डब्ल्यू कितना है म्यू डब्ल्यू बाय क्या लिखते हैं म्यू ए कितना है 1.32। ठीक, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म इज गिवन टू अस 60 डिग्री। ठीक, हमें निकालना है क्या डेल एम, या वी हैव टू फाइंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यूज, तो क्या होगा फॉर्मूला यूज, यहाँ पर फॉर्मूला यूज इज
म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइड बाय साइन ए बाई टू म्यू। अब क्योंकि लाइट आपकी कहाँ जा रही है, प्रिज्म है, वाटर में रखा हुआ है, ठीक, इट मीन्स यू विल फाइंड ए म्यू जी बाय ए म्यू डब्ल्यू। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू, क्योंकि प्रिज्म आपका ग्लास का है और वो प्रिज्म जो ग्लास का है वो वाटर के अंदर रखा हुआ है। इट मीन्स वाटर इज द फर्स्ट मीडियम, मीन्स लाइट इज कमिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास। तो मीन्स लाइट कहां से कहां जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हम ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। मीन्स ऐसा कुछ होगा, ये मान लीजिए प्रिज्म है, ये वाटर है, ये ग्लास है, तो लाइट रे यहां से जा रही है, मीन्स फ्रॉम दिस मीडियम, दिस इज वाटर, दिस इज ग्लास, सो वाटर से ग्लास आ रही है। एज यू नो वाटर इज ए रेयर मीडियम देन ग्लास एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम देन water. It means light is going from rare to denser medium. It means you have to find the ratio of refractive index of denser to rarer. तो ये निकाल लेंगे, तो ये कितना आएगा, यहाँ से म्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या है, ये म्यू तो है, कितना आएगा 1.52 बाय 1.32, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, so 1.52 by 1.32 sin of A is 60, 60 by 2 is 30 degree plus del m by 2 sin of it is 1 by 2, so 1 by 2 यहाँ लिखते हैं, 1 by 2 multiplied by 1.52 by 1.32 is equal to sin of 30 प्लस डेल एम बाई टू। अब देखो बच्चे यहाँ तक कर लेते हैं, इसके बाद दिक्कत आती है कि हम डेल एम कैसे निकालें। तो जब तक मैं इस पूरी टर्म को सोल्व करके साइन ऑफ एनी एंगल कि मैं ये पता करूं कि ये जो वैल्यू आएगी ये साइन के कितने एंगल पे आएगी, तो सोल्व करते हैं इसको। तो इसको कर लेते हैं 132 152 132 हो गया, 0 2, ठीक है। तो अब क्या आएगा, 0 आ गया, तो हमने पॉइंट लगाई, 0 आ गया, ठीक। तो 132 कितना आएगा, 3 पे जाएगा, नहीं 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, ठीक। तो 131 तो 9 6 6 9, ठीक, ठीक है। कितना आ गया, 1.1 आ गया। सो 1.1 तो ये आ गया इसका, और ये बाय 2, तो तेरे को तेरा बोलो। सो इट इज 0.5, ठीक। तो क्या आएगा इसका, so it will be 0.5 sin of 30 degree plus del m by 2, साइन ऑफ, तो अब 0.5 क्या होता है, 1/2, तो 1/2 जो वैल्यू है, so it is approximately equal to sin 30 degree, साइन ऑफ 30 plus del m by 2, so equating both sides 30 will be equal to 30 plus del m by 2, कितना आ गया, 30 plus del m by 2, तो 30 ये है, 30 तो नहीं आएगा ये, तो चेक कीजिए कहीं गलती है। 1.52 डिवाइड बाय 1.32, ये तो मेरा आ गया 1.15,
ठीक है, ये आ गया, ठीक है। 1.15 इंटू 1/2 विल बी हाउ मच? 2 बजे 10, 2 सत्ते 57 का मतलब हुआ ये कितना आ जाएगा साइन, ये कितना आ गया, ये 35 आ जाएगा, 35 तो 35 के आसपास आ जाएगा, तो 35 ये आएगा, ठीक है। तो डेल m/2 कितना आएगा 5 डिग्री, और डेल m विल बी इक्वल टू 10 डिग्री। तो क्या आ गया, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू हाउ मच, 10 डिग्री। एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ तक निकाल लेते हैं, इसके बाद इसके बाद क्या करना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये चेक करना है सोल्व करके कि वो जो वैल्यू है वो साइन के किस पॉसिबल एंगल के आसपास आ सकती है, उसका वैल्यू एंगल यहाँ लिखेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो विल फाइंड द डेल्टा एम। तो डेल्टा एम विल बी इक्वल टू हाउ मच, 10 डिग्री आ गया। सो डेल्टा एम विल बी इक्वल टू 10 डिग्री। सो इन दिस वे we will solve the numericals based on prism, reflection through the prism. Whenever you have to finding the parameters, but one thing is more important, that whenever you have to find the angle of deviation, if angle of prism is less than 10 degree, you will be using the formula delta is equal to mu minus 1 into a. If angle is bigger angle prism you are having, then you will using delta will be equal to I1 plus I2 minus a. So with this I just would like to say that कि अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और पढ़ाई को जारी रखें जितना हो सके। तब तक के लिए आपके धन्यवाद। थैंक यू सो मच।